Assalamu alaikum dear student. Welcome to Bahria Model School, PNAD Maripur Secondary Wing. I hope you all are fine. I am your science teacher Ms. Shazia Amin, going to conduct your second lecture. We started our chapter number 2, changes in matter and what caused them. So today we are going to study the process involving changes in states. कि मैटर में जो चेंजेस होती हैं वो उनमें कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, वो किन प्रोसेसेस से एक मैटर की एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज होती है. सो व्हाट आर आवर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स? टू अंडरस्टैंड डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स इन चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर, टू डिफाइन दीज प्रोसेसेस, ड्रॉ द डायग्राम शोज चेंजेस इन स्टेट्स. So in last topic you studies the changes in states according to kinetic molecular theory कि साइंटिस्ट ने जो है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में जो चेंजेस होती हैं उनको किससे एक्सप्लेन किया? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को से अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया दैट दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर ड्यू टू द पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड द पर्टिकुलर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. ओके, सो टुडे वी आर going to study about that what are the processes involving changing in states, that these states of matter which can interconvertible and which can convert from one state to another form or another state. So what are the process involving during these changes? So these are the processes, 5 processes which are involving in changing states of matter. So when a solid is converted into a liquid, then the process is called as melting. Similarly, when liquid is converted into a solid, then this process is called as freezing. And when liquid is converted into a gas, then this process is called as condensation. Boiling or evaporation. And when gas is converted into a liquid, then this process is called as condensation. जब हम लिक्विड को हीट करते हैं, बॉयल करते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में. और जब हम गैस को कूल करेंगे, ठीक है, तो ये कंडेंस होकर दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन. सिमिलरली व्हेन सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू अ गैस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन. सो दीज आर द 5 प्रोसेसेस व्हिच आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर. So what happened to the atoms or molecules in a substance when it changes its states? So during the changes in states from one form to another form, there is the involvement of energies. Okay, so when solid is converted into a liquid, so what happened? We add energy, we provide heat, okay, or it absorbs heat from its surroundings and it converted into the liquid. So energy is added. Similarly, if we want to convert liquid into a gas, then further heat is added. So conversion of solid into liquid and liquid into a gas, there is the addition of energy. What happens when the reaction is backward? When gas is converted into a liquid, then this energy will be removed. Energy removed and the particles come closer to each other and converted into the liquid. And when liquid is converted into the solid, then again energy will be removed and particles further move towards each other, come closer to each other and converted into a solid. So this is the involvement of energy in between these 3 states of matter. So first process is the melting. ठीक है, melting क्या है? Conversion of solid into liquid is called as melting. Melting एक process है जिसमें solid किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो होता क्या है, जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो पार्टिकल्स क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी गेन करते हैं और वाइब्रेट करने लग जाते हैं फास्टर, बिकॉज वी नो दैट सॉलिड पार्टिकल्स वाइब्रेट. ओके, दे हैव बैक एंड फोर्थ मोशन. सो उनकी वाइब्रेशन तेज़ हो जाती है क्योंकि उनको एनर्जी मिलती है. ठीक है, अब वो हरकत में आना शुरू हो जाते हैं और एक ख़ास टेम्परेचर पे, एक सर्टन टेम्परेचर में क्या होते हैं, पार्टिकल्स इतने वाइब्रेट करते हैं कि उनका जो ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है वो ब्रेक हो जाता है. ठीक है, और उस पॉइंट पे जो है वो सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाता है. किस में? लिक्विड में. ठीक है, सो द टेम्परेचर एट विच दिस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड हैपन्स इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, एक ख़ास मखसूस टेम्परेचर होता है जिस पे सॉलिड जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है लिक्विड में. तो वो
टेम्परेचर जो है वो क्या कहलाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो हर सॉलिड का अपना क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही वाटर फ्रीज होता है और वहीं से ही वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज फ्रीजिंग, दैट इज द ऑपोजिट ऑफ द मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या थी, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। नाउ फ्रीजिंग इज द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू अ सॉलिड। सो द चेंज from liquid state to a solid state is called as freezing. So क्या होता है during the freezing कि the process of melting a crystalline solid can be reversed if the liquid is cool. जब हम liquid को cool करते हैं, इसके जो particles हैं उनकी जो thermal energy है, जो heat energy है, वो सारी loss हो जाती है और particles की जो movement है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है और वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आता है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस इतनी बढ़ जाती हैं कि ये लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो द टेम्परेचर एट विच लिक्विड इज कन्वर्ट इनटू अ सॉलिड, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, सो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जैसे ही हम बर्फ़ को निकालते हैं फ्रीज़र में से तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ही वो फिर फ़ौरन से मेल्ट होना भी स्टार्ट हो जाती है। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट प्रोसेस इज वेपोराइजेशन। ठीक है, वेपोराइजेशन में 2 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, एवापोरेशन एंड बॉइलिंग। ठीक है, वेपोराइजेशन होता क्या है, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू अ गैस। ठीक है, सो यू कैन सी इन द पिक्चर, एवापोरेशन इज द escaping of the particles or molecule from the surface of liquid without any heating. ओके, एवापोरेशन में क्या होता है कि सिर्फ जो है वो अपनी सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करके सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स हरकत में आते हैं। ठीक है, और वो सरफेस से escape हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैस। ठीक है, जबकि बॉइलिंग में क्या होता है कि हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं और पार्टिकल्स जो हैं, जितने भी बल्क में पार्टिकल्स हैं, सारे सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं पूरे लिक्विड में, वो सब फास्टर एंड फास्टर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सो देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन एवापोरेशन एंड अ बॉइलिंग। ठीक है, बोथ आर द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू अ गैस, बट एवापोरेशन अकर्स एट एनी टेम्परेचर। ठीक है, बट बॉइलिंग एट अकर एट हाई टेम्परेचर विच इज़ गिवन बाय अस। सो एवापोरेशन में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो हैं वो एनर्जी गेन करते हैं, जैसे आपको ये वार्म सी नज़र आ रहा है। ठीक है, कि सी साइड पे क्या होता है, सनलाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं सरफेस से। ठीक है, और जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं, जो सरफेस में वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, वो एनर्जी गेन करते हैं और एवापोरेट हो जाते हैं। ठीक है, सो इसके लिए कोई मखसूस टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ जस्ट एस्केपिंग ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स जो हैं वो एनर्जी गेन करते हैं और इतने फास्टर मूव करना शुरू कर देते हैं कि वो एवापोरेट हो जाते हैं। जबकि बॉइलिंग में क्या होता है, अ बॉइलिंग इज़ अ रैपिड चेंज फ्रॉम अ सॉलिड टू अ गैस और वो वेपर इज़ कॉल्ड बॉइलिंग। ठीक है, कि रैपिड चेंज होता है लिक्विड से गैस में, क्योंकि हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो द स्पेसिफिक टेम्परेचर एट विच दिस अकर इज कॉल्ड इज द बॉइलिंग पॉइंट। एक मखसूस टेम्परेचर जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। सो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि उसके बॉटम में से बबल्स निकलना शुरू हो जाते हैं और सरफेस पे आके ब्रस्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। उस बॉइलिंग पॉइंट पर आके किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जितने भी हमें उसमें से जो है वो बबल्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं और ग्रेजुअली जो है वो पानी का लेवल कम हो जाता है, पानी एवापोरेट होना शुरू हो जाता है, तो वो जो फर्दर हीट उसको मिल रही होती है वो सिर्फ उसकी स्टेट को चेंज कर रही होती है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रही होती है। ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट गुजर जाता है और बॉइलिंग पॉइंट के बाद उसके टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। ठीक है,
सो हर सब्सटेंस का अपना बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट होता है जिससे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं. सो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड एवापोरेशन. ठीक है, यहाँ से आप इसको नोट डाउन करेंगे, ये आपकी बुक में नहीं है बट ये पेपर्स में आ सकता है. सो बॉइलिंग हमने देखा अकर्स एट फिक्स टेम्परेचर. बॉइलिंग एक फिक्स टेम्परेचर पे होती है, जबकि एवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है. बॉइलिंग कैसा प्रोसेस है? क्विक प्रोसेस है, ठीक है, जबकि एवापोरेशन कैसा? स्लो प्रोसेस है. बॉइलिंग जो है वो थ्रू आउट द लिक्विड होती है, ठीक है, सारे पार्टिकल्स मूव करते हैं, जबकि एवापोरेशन में सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स जो है वो मूव करते हैं. बॉइलिंग में क्या होता है? बबल्स बनते हैं, ठीक है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लिक्विड विच कम्स टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड, जबकि एवापोरेशन में कोई बबल्स नहीं बनते. बॉइलिंग में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, जबकि एवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है. ठीक है, टेम्परेचर हमारी सराउंडिंग का टेम्परेचर कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, तो किसी भी टेम्परेचर पे एवापोरेशन हो सकती है. बॉइलिंग में हम क्या करते हैं? थर्मल एनर्जी यानी हीट एनर्जी खुद सप्लाई करते हैं. ठीक है, किसी भी एनर्जी सोर्स से, किसी बर्नर से, किसी लैम्प के थ्रू, ठीक है, तो हम एनर्जी सोर्स खुद प्रोवाइड करते हैं, जबकि थर्मल एनर्जी एवापोरेशन में सराउंडिंग से ही मॉलिक्यूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और सरफेस के पार्टिकल्स एस्केप हो जाते हैं. नाउ द फोर्थ प्रोसेस इज कंडेंसेशन. ठीक है, कूलिंग का प्रोसेस जो कहलाता है. ठीक है, सो कंडेंसेशन किस में होती है? गैस के मॉलिक्यूल्स में होती है. सो व्हेन अ गैस कूल्स इट्स पार्टिकल्स स्लो डाउन. ठीक है, जब गैस को हम कूल करते हैं तो उनकी पार्टिकल्स की एनर्जी क्या होती है? वो लॉस हो जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनकी जो मूवमेंट होती है वो कम हो जाती है, और वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब आना शुरू हो जाते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, सो दिस प्रोसेस विच इज़ द ऑपोजिट ऑफ वेपोराइजेशन. ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस. नाउ दिस इज द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इनटू लिक्विड. सो दिस इज अ वेपोराइजेशन. ठीक है, इस दौरान भी टेम्परेचर में कोई तब्दीली नहीं आती. ठीक है, अक्सर आप देखते हैं जब हम ठंडे पानी की बॉटल्स निकाल के रखते हैं या कोल्ड वाटर गिलास है, ठीक है, हम बैग पर जाते हैं, ये देखें, ठीक है, एक कोल्ड वाटर ग्लास हमने रखा. ठीक है, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उस पर क्या आते हैं? वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं. ठीक है, तो ये कैसे आते हैं? क्योंकि एनर्जी जो है वाटर के इन्वायरमेंट में क्या मौजूद है? एयर मौजूद है, जिसका टेम्परेचर इस कोल्ड वाटर के मुकाबले में ज़्यादा है. तो एनर्जी जो है, हीट एनर्जी मूव करती है फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन. तो ये जो वार्म मॉइस्ट एयर है, ये इस वाटर की सरफेस से, इसकी वॉल से, वाटर ग्लास की वॉल से टकराएगी. ठीक है, और यहाँ पर आके इस गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं? कूल हो जाते हैं. ठीक है, करीब आ जाते हैं, और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वाटर के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो ये पानी कहीं और से नहीं आता, जब बल्कि क्या होता है, हमारी एयर में मौजूद जो है, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. तो जो हमारे पास वार्म मॉइस्ट एयर होती है, ठीक है, वो जब इस कोल्ड वाटर के ग्लास से टकराती है तो वो गैस जो है वो कूल हो जाती है, उसकी जो थर्मल एनर्जी है वो लॉस हो जाती है, और पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स में. सिमिलरली जब आप किसी क्लोज कंटेनर में कुकिंग कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं उसकी लिड्स पे और उसकी वॉल्स पे ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं. क्या होता है कि वो जो लिक्विड होता है ड्यूरिंग कुकिंग वो एवापोरेट होना शुरू हो जाता है, बॉयल होता है, बट ऊपर चूँकि लिड होती है तो वो गैस के पार्टिकल्स बाहर इस्केप नहीं हो सकते. ठीक है, तो वो वहीं लिड से और वॉल से टकरा कर अपनी सारी थर्मल एनर्जी लॉस कर देते हैं. ठीक है, और वो गैस के पार्टिकल्स दोबारा से कूल डाउन होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन. नाउ द लास्ट टॉपिक इज सब्लिमेशन. कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली जो है वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं. हालांकि पहले क्या होना चाहिए कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है और फिर गैस में कन्वर्ट होता है, बट सम सॉलिड्स are directly converted into a gas without taking the shape of a liquid. So this process is called as sublimation. ये process क्या कहलाता है? Sublimation कहलाता है. ठीक है, और इसी का opposite अगर कोई गैस जो है लिक्विड में सॉलिड में डायरेक्टली कन्वर्ट होगी तो वो प्रोसेस कहलाता है डिपोजिशन. ठीक है, सारे सब्सटेंसेस जो है वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट नहीं होते, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं. सो वो सब्सटेंसेस जो डायरेक्टली जो है वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड सबलाइम.
फॉर एग्जाम्पल कैमहोर, नेफ्थलीन बॉल्स, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन एंड ड्राई आइस. These are the some examples of the sublime substances. आप इस प्रैक्टिकल में भी देख सकते हैं कि अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट लिया है, उसको हीट किया, ठीक है, और एक फनल उस पर इन्वर्ट करके रख दी और इसको यहाँ से ब्लॉक कर दिया, ठीक है. तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है. अब चूंकि उस गैस के पार्टिकल्स को, उन वेपर्स को बाहर जाने की जगह नहीं मिली, तो दोबारा से वो इसकी वॉल्स के साथ टकरा के किस में कन्वर्ट हो गए, सॉलिडिफाई हो गए, और यानी गैस जो है वो फिर डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो गई अमोनियम क्लोराइड में, ठीक है. सो द कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू सॉलिड, इट इज़ कॉल्ड डिपोजिशन. सो सब्लिमेशन की हमारी डेली और एवरीडे लाइफ में क्या क्या यूजेस हैं, ठीक है. ड्राई आइस क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, ठीक है. बट जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को कूल करते हैं, उस गैस को कूल करते हैं, तो वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होने के बजाय डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है. डैट इज़ कॉल्ड ड्राई आइस, ठीक है. और सिमिलरली जब हम उस ड्राई आइस को हीट करेंगे तो वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी विदाउट टेकिंग द शेप ऑफ अ लिक्विड, ठीक है. तो ड्राई आइस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इट इज़ अ सबलाइम, ठीक है. और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ है, फायर एक्सटिंग्विशन में भी ड्राई आइस यूज़ होती है, ठीक है. इसके अलावा आपको मूवीज़ में या स्टेज शोज़ और ड्रामास में स्मोक नज़र आ रही होती है, ठीक है, धुआं नज़र आ रहा होता है या क्लाउड्स नज़र आ रहे होते हैं बहुत सारे, तो वो किससे बनाते हैं, ड्राई आइस से बनाते हैं. सिमिलरली नेफ्थलीन बॉल्स आर द सबलाइम सब्सटेंसेस, ठीक है. ये अक्सर जो है वो क्लॉथ्स में या डॉक्यूमेंट्स में रखी जाती हैं. ये बॉल्स आपने घरों में भी देखी होंगी, कपड़ों में रखी जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स में रखी जाती हैं टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द इंसेक्ट्स, ठीक है. ये कीड़े मकोड़ों को दूर रखती हैं नेफ्थलीन बॉल्स, इसलिए इनको कपड़ों में रखा जाता है. सो दीज आर द समरी, ठीक है. वी नो डैट water occur in 3 states of matter. Ice is a solid. On melting, it is converted into a liquid, and on further heating, that is the evaporation, it is converted into a steam or gas particles. When steam or gas particles cools, that is called condensation, it is again converted into a liquid, and when liquid start freezing, then it is converted into a solid, ठीक है. एंड व्हेन सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू अ गैस, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन. सो स्टीम भी क्या है, वाटर है, H2O है. अक्सर पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ स्टीम. सो स्टीम इज़ अनदर नेम ऑफ वेपर्स ऑफ वाटर, ओके. सो स्टीम का भी क्या फार्मूला होता है, H2O, वाटर ही है. सो दीज आर द 5 प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द चेंजेस इन स्टेट्स. सो होम टास्क है आपका कि आपने लेक्चर को रिवाइज करना है और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर याद करने हैं. डायग्राम जो है वो आपने उन प्रोसेसेस की जो मैंने सबसे स्टार्ट में आपको दिखाई थी, सर्कुलर डायग्राम, वो आपकी बुक में मौजूद है, वो बनानी है. और एक वर्कशीट आपको दी जाएगी डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, ठीक है, वो आपने सॉल्व करनी है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं और MCQs हैं, ठीक है. आपने बुक से स्टडी करना है और उस वर्कशीट को सॉल्व करना है.